session. Alright, it's session number 9. And the next session is going to be the concluding session of this chapter. Okay. Well, in this session, the last concept of the chapter that we are going to learn is cumulative frequency curve, also known as Ojai. So, from the word itself, the name itself, you can say that we need cumulative frequency while drawing the ogive. Ogive, Ojai. My teacher used to pronounce Ojai, but actual pronunciation is ogive. Alright? Okay. And see, it's cumulative frequency curve. There is curve. You will see the curve when you draw the graph, and that's why it's called cumulative frequency curve. Alright? To draw the graph, I've given one table here. It is frequency distribution table. And the median of the table frequency distribution is also given. The median is 66.4. I'll tell you why I've given that later. But remember, ogive are of two types. Ogive definitely is cumulative frequency curve. But they are of two types. Cumulative frequency curve of less than time. Cumulative frequency of less than time. We have seen yesterday how to convert simple frequency distribution into cumulative frequency distribution of less than time. Or next kya? The second one, cumulative frequency curve of more than or equal to time. More than or equal to time. आपकी समझ में आ रहा है children? Are you all getting me? Sure. So there are two cumulative frequency curves. One less than type and other more than type. Is that more than or equal to type? Okay. पहले हम draw करेंगे graph which is cumulative frequency curve of less than type. तो ये frequency distribution नहीं चलेगा. We will need cumulative frequency distribution of less than type. What we will need? Cumulative frequency distribution of less than type. पता है? Yesterday we did that work. यदि less than type बनाना हो तो आपको upper boundary पसंद करना होगा. क्या है upper boundaries? 10. So you start. ये मार्क्स है, जो क्लास है वो मार्क्स है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे यहाँ, राइट? सो लेस देन 10. लेस देन टाइप बनाना हो तो स्टार्ट विद अपर बाउंड्रीज. अब ग्राफ में भी अपर बाउंड्री लेने वाले हो ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. बोलो 10 लेस देन 10. उसके बाद लेस देन 20 less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, less than 80, less than 90, or less than 100. Now try to understand. How many students got less than 10 marks? Only 5. जो 5 है उनका less than 10. How many students got less than 20? 5 plus 3. That is 8. Follow 8 plus 3. They have scored less than 30. 12 plus 3, 15. They have scored less than 40. That 15. Shanti Rakho. 15 plus 3. They have scored less than 50. उसमें 4 और ऐड कर दो. 22. They have scored less than 60. Add 7. 29. They have scored less than 70. Plus 9. 38, they have scored less than 80 marks. Plus 7, 35, they have scored less than 45. Sorry, this will be, of course, 45. Or plus 8, 53, they have scored less than 100. 100 is not included here. 100 is not included here. So less than 100, all students, all 53. I have 53. Alright. So what you have prepared?
cumulative frequency, cumulative frequency of less than. Now let's prepare ourselves to draw the graph. For drawing graph, you will need Cartesian coordinate system. Plane है ना? तो उसमें क्या ड्रॉ करते हम लोग? Horizontal line. आशीष कुमार, which is x-axis. ये x-axis होती है. Then vertical one, y-axis. All right. चलिए. This is origin O. अब यहां आपको लेना है upper boundary या upper limits. On x-axis you will take and cumulative frequency. On y-axis. Cumulative frequency on y-axis. upper limits कहां से शुरू होता है? आपको एक और लेना है. उसके आगे क्या है? 0. तो 0 से स्टार्ट होता ही है. और you see 10, 20, 30. So you can do that. 10, 20, 1 centimeter is equal to 10, है ना? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. बस एक एक्स्ट्रा ले ली. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो. मैक्सिमम तो क्या लोगे? 5 ले लो. 5 12 60. 12 डिविजन्स में हो जाएगा. तो ये 1 2 3 4 5. आपको ये करना नहीं है. आपके पास तो 1 सेंटीमीटर का है ही. 6 7 8 9 10 11 12 13. चलिए. दिस इज व्हाट? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65. हमारा 53 आ गया. All right. Now ordered pair. कैसे? The first ordered pair is 10 or 5. 10 or 5. So 10 is here and 5 is here. They will meet here. Understood? Yes. This is 10. 5. Next is 28. So ये 20 और 8 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना? ये 28. नेक्स्ट इज 30 12. ये 30 वाली लाइन x इक्वल टू 30 और 12 थोड़ा ऊपर 10 और 15 के बीच वाला, है ना? So somewhere here. This is 30 12. Then 40 15. 15 आपको एग्जैक्टली मिलेगा. x इक्वल टू 40 वाली लाइन, y इक्वल टू 15 वाली लाइन, दोनों यहां मिलेगी, है ना? Alright. Then 50 18. x इक्वल टू 50 वाली लाइन और y इक्वल टू 18 वाली लाइन, y इक्वल टू 18 वाली लाइन यहां. समझ में आई बात? Now 60 22. x इक्वल टू 60 this और 22 20 के ऊपर थोड़ा सा आपको आपकी ग्राफ पेपर में बहुत सही ढंग से मिल जाएगा. राइट. Then 70 29 70 और 29 वो 30 से नीचे और ये 70. ऑलराइट. 80 38 35 36 37 38 यहां कुछ मिलेगा और 80 यहां है. फिर 45 वो तो एग्जैक्टली मिलेगा 45 यहां और 90 वाली लाइन यहां मिलेगा. चलिए. और 100 और 50 और 55 के बीच और यहां मिल गया. अब आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है. यहां ड्रॉ करना है फ्री हैंड मतलब हल्के हाथ से हर एक पॉइंट से कर्व ड्रॉ करना है. So you start from here. This is called cumulative frequency curve of less than. Cumulative frequency curve of less than. Cumulative frequency curve of less than. दो चीज आपको मार्क करनी है. मार्क 2 things nicely.
इफ इट इज, ऑफ कोर्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ओजी, ऑलराइट, ओ लेस देन टाइप हो या मोर देन टाइप हो, मोर देन इक्वल टू टाइप हो, इट्स कॉल्ड ओजी, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. Now two things to be noted here. When it's cumulative frequency of less than type, on x-axis we have upper limit, y-axis fixed है. क्या है? Cumulative frequency. That is one thing you have noted. On x-axis it is upper limit. Here less than type of cumulative frequency curve, but on x-axis we take upper limit. दूसरी बात, ये कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है. लेस देन टाइप में ऊपर जा रहा है, इन लेस देन टाइप वो अब हम प्रिपेयर करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ मोर देन और इक्वल टू. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बोलो, मोर देन और इक्वल टू. लेकिन आप मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं. इफ यू आर प्रिपेयरिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ मोर देन टाइप, then you have to consider lower boundaries या lower limits. लड्डू जरा सीधा बैठ, कहाँ है लड्डू, मेरे लड्डू, हाँ सीधा बैठ. चल, okay. Now see, please pay attention, please pay attention. हमको cumulative frequency distribution of more than type बनाना है. So more than or equal to, more than or equal to, बोलो लोअर लिमिट क्या है? 0. more than or equal to 0. फिर more than or equal to 10. more than or equal to सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, more than or equal to 20, more than equal to 30, more than or equal to 40, more than or equal to 50, more than or equal to 60, more than or equal to 70, more than or equal to 80, more than or equal to 90, and more than or equal to 100. वो नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 90 आएगा. more than equal to 100 नहीं लेंगे तो भी चलेगा. Is that clear? क्योंकि वो 0 ही आएगा. Now frequency हम लेंगे. चलो, more than or equal to 0, सारे के सारे बच्चे के मार्क्स हैं, all 53. आप मोर देन प्रिपेयर करें तो हाईएस्ट वैल्यू यहां आएगी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी 53 यहां आएगी, एंड इट विल स्टार्ट बिकमिंग लेस, एंड इट विल स्टार्ट बिकमिंग डायरेक्ट. याद रखना, तो पहले में से 5 माइनस करो, 48, 48 में से 3 माइनस करो, 45, 45 में से 4 माइनस करो, 41, 41 में से 3 माइनस करो, 38, 38 में से 3 माइनस करो, 35, 35 में से 4 माइनस करो, 31 में से 7 माइनस करो, अब 24, 24 से 9 निकालो, अच्छा, और 15 से 7 निकालो, 8, और 8 से 8 निकालोगे तो 0 आएगा. 8 से 8 निकालो, लेकिन मैंने लिया ही नहीं ना, लास्ट 8 आ गया, हो गया. मैंने कहा था ना मोर देन 100, मोर देन इक्वल टू 100 हो गए तो 0 ही होगा. सो आई एम नॉट टेकिंग दैट. चल, अब हो गई बात. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ, इरेज दिस एंड ड्रॉ अनदर x axis, y axis, that is Cartesian coordinate plane. For that, what? Cumulative frequency of more than or equal to type of curve, cumulative frequency curve. इसी में ड्रॉ कर दो. लेकिन when you draw that, it has to be lower limit. यहाँ lower limit को ध्यान में रखें. वो तो वही है, 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना. चलो, फर्स्ट वन 0, 53, ये रहा 0 और 53 यहाँ. सो दिस इज द पॉइंट. आपकी समझ में आया? 0, 53, x कोऑर्डिनेट 0, सो पॉइंट इज ऑन y एक्सिस. y एक्सिस पे 53 कहाँ है? यहाँ है. देयर यू आर. ओके, देन 10, 48, ये 10 और 48 समवेयर 50 के नीचे यहाँ. ठीक है. 20, 45, x इक्वल टू 20 ये जाएगा, 45 भी एग्जैक्ट मिलेगा, ये रहा. करेक्ट. 30, 41, x इक्वल टू 30, 40 के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर 41. फिर अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं. ठीक है, ये हो गया.
समझ लो ये हो गया। बाकी का काम मैं बाद में करता हूं, बट आई वॉन्ट टू नो मीडियन फ्रॉम द ग्राफ। आई वॉन्ट टू नो मीडियन फ्रॉम द OG, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ लेस देन। तो बड़ा आसान है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? हम लोग कहते हैं ना मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2। सो 50 ऑड है ना, 53 इज ऑड, so 53 plus 1 by 2, 54 by 2, so that is 27th observation. like cumulative frequency में 27 देखते हैं ना, तो यहाँ cumulative frequency में 27 देख लो, somewhere here है ना 25। और cumulative frequency हम cumulative frequency में देखते हैं ना वो, so cumulative frequency में 27 पिक अप करो ये, and this is y equal to 27। ये थोड़ा ऊपर नीचे होगा चिल्ड्रन, y is equal to 27। ये ग्राफ y equal to 27 वो कहां इंटरसेक्ट हो रहा है? यहां से नीचे ले लो, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। 60 और 70 के बीच है ना, which is actually 66.4। वही मीडियन देगा आपको, you'll get the median from the graph। Are you getting me? समझ में आया? और ये तो टेढ़ा है, ऊपर जाएगा ज्यादा, वो तो ये टू द स्केल नहीं है ना, इसलिए। ऑलराइट, मैंने थोड़ा एडजस्टमेंट कर लिया आपको समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ मोर देन और इक्वल टू टाइम, यहां से हम रुके थे 40, 38, 40 और 35 और 40 के बीच समवेयर हियर, दिस इज 40, 38, देन 50, 35, 50 x इक्वल टू 50 और 35 तो एग्जैक्टली मिलेगा हमें यहां समवेयर, राइट। 60, 31, 60 यहां और 31 यहां, राइट। 70, 24, 74 यहां, 70 यहां और 24 समवेयर यहां, है ना। फिर 80, 15, 80 is here, 15 exactly, 80, 15, then 98, so 90 is here, 8, 10 के नीचे आएगा somewhere here, alright। Once again I'm going to draw free hand, लेकिन ये ऊपर से आएगा, है ना। Once again note two things, ये जो है this is cumulative frequency curve of or equal to, yeah, that's called OG, उसको भी OG कहते हैं। चलिए once again 27th observation, तो cumulative frequency में 27th observation, अरे वो भी वही इंटरसेक्ट हुआ तो वही आएगा। सो फ्रॉम cumulative frequency curve of more than or equal to type also you can find out the, और क्या आपने नोट किया, क्या ऑब्जर्व किया? लोअर लिमिट है। इफ यू ड्रॉ बोथ द ओजीव्स, आप दोनों ड्रॉ करें तो जो पॉइंट, तो ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, देन यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस y इक्वल टू 27, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 लेने की जरूरत। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जो भी वैल्यू होगी दैट इज योर मीडियन। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो if you want to prepare OG, that is cumulative frequency curve of less than type, then upper limit has to be taken on x-axis and cumulative frequency on y-axis. Second thing, if it is less than type, then that OG will move from down to up. If you have to draw cumulative frequency of more than or equal to type, then you will have to take lower limit on x-axis and cumulative frequency on y-axis, and the graph will come from top to bottom, ऊपर से नीचे जाएगा। If you have drawn both the graphs, if you have drawn both the graphs, both the OGs of less than type and more than or equal to type, then the point of intersection, from there you drop perpendicular to x-axis, the foot of perpendicular on x-axis, जो भी वैल्यू होगी that is the median of this data।
सपोज आपने एक ही ड्रॉ किया, सिर्फ ये रेड डॉट्स वाला, दैट मीन्स लेस देन टाइम, देन व्हाट यू डू, टेक y इज इक्वल टू 27, वहां से लाइन ड्रॉ करो, वो ग्राफ को कहां इंटरसेक्ट होता है, यहां, फ्रॉम देयर यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, यू गेट मीडियन। और आपके पास सिर्फ लेस देन, मोर देन और इक्वल टू टाइप ओजीव है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो वंस अगेन मीडियन ढूंढने के लिए 27th ऑब्जर्वेशन, सो यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 27 है, राइट, सो ड्रॉ y इक्वल टू 27, वो ये ग्राफ तो कहीं इंटरसेक्ट होगा, तो यहां होगा, सो वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऑन x एक्सिस, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जो भी वैल्यू है दैट इज मीडियन। सो एक चीज निकल के आती है, वी कैन कंक्लूड वन थिंग, if you have to find the median of the data, you can obtain also from the graph. You can also obtain from the graph. Mode cannot be obtained from the graph. Mean cannot be obtained from the graph. But median can be obtained from the graph. So there can be one multiple choice question. Which of the following measure of central tendency can be obtained from drawing graph? Option A, mean, median, mode, and none. Median. Yeah. So remember, please. Okay? Understood the concept? Yes. All right. So children, here we are. After learning that, how to draw ogive. All right. Here is one question. We have also learned that from ogive we can get median. So this is question from exercise 14.4. Question number 1. Let's see. Are you ready? Yes. The following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. 50 मजदूर है फैक्ट्री में, उसका डेली इनकम का इंफॉर्मेशन है. कन्वर्ट इट टू अ लेस देन टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Draw ogive and find the median. Yes. This is simple frequency distribution. So I have to convert into cumulative frequency of less than time. तो उसके लिए मुझे लोअर बाउंड्री लेना है क्या अपर बाउंड्री लेना है? डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स लेस देन टाइम, सो अपर बाउंड्रीज लेना है. क्या लिखूंगा मैं? लेस देन 120, लेस देन 140, फिर 160, 180 and less than 120 कितने? 12. और फिर ऐड करते जाओ, बोलो 26, 34, 40 और बड़ा आसान, राइट. ना या फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लगता है हमको, है ना? Normally we need only the first quadrant. So first quadrant ही बड़ा दिखाया. This is origin. This is x-axis. This one is y-axis. चलिए ठीक है. Now what you are going to take on x-axis? Yes, upper limit, or you can say upper boundary. Or what you are going to take on y-axis? Cumulative. अब जो x एक्सिस पे लेने वाले हैं क्या? अपर लिमिट. अपर लिमिट यही है 120, 140, 160, 180 और 9. ओके, ये तो 20-20 का गैप है, 20-20 का गैप है. अब सुनिए, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल. सीधा 120 नहीं शुरू करूंगा. कहां से शुरू करूं? 120 यहीं से. तो ये ओके, ये 120 है, समझ लीजिए 120. फिर ये 1, एक काम कर सकते हैं ना हम लोग, एक काम कर सकते हैं ना कि यहाँ कितना है? सिर्फ 1, 2, 3, 4 और 5 है. सो एक छोड़ सकते हैं हम लोग. ये 120, फिर एक छोड़ दिया 140, that 160, that 180, and then 200, then 220. स्केल हम भूल गए थे लिखना.
के एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, कितना डिफरेंस है? इनफैक्ट 2 सेंटीमीटर हमने लिया, 2 सेंटीमीटर लिया, एंड दैट इज 20. 2 सेंटीमीटर इज 20. ये क्या है? ये है ना लिमिट्स, लिमिट्स, लिमिट्स. तो वो इनकम है 20 रुपीज, 20 और वाई एक्सिस पे. अब सोचो वाई एक्सिस पे मैक्सिमम क्या है? 50. तो 5 ले ले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60. 1 सेंटीमीटर is what? 5. और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब लर्कर्स. वेरी गुड चिल्ड्रन. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5. ये लिखना बहुत जरूरी है. ना यस, फर्स्ट ऑर्डर पे 120. हाँ, ये गैप 20 का है और यहाँ तो 120 का हो गया. 140 माइनस 120 इज व्हाट? 20. 160 माइनस 140 is what? 20. लेकिन 120 माइनस 0 is what? 120. 20 का नहीं है. So यहाँ क्या लगेगा? किंग. क्या लगेगा? भूसी काढो અને પછી વચ્ચે લાઈન ડ્રો કરો. આમ જોડો અને આમ. किंग याद છે કે? हाँ. तो वहाँ किंग लगेगा. वो बता रहा है कि यहाँ कुछ लपेटा गया है. Are you getting me? कॉन्ट्रैक्ट किया गया है. ओके, ये पूरी लंबी लाइन है. 120 तो बहुत दूर से शुरू होगा. पहले क्या आएगा? 20 40 60 80 100 120. तो वो 20 40 60 80 100 उसको कॉन्स्ट्रिक्ट किया गया. चलिए ना स्टार्ट. 120 और 12. 120 12 कुछ यहां आ जाएगा. This is your point. 120 and 12. Then 140 26. ये 140 है और 26 25 के ऊपर आएगा. अब ये exactly मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. 160 और 34. 160 वाली लाइन यहाँ चलेगी. 34 35 के नीचे, 35 के नीचे 160 और 35 के. ठीक है. 180 और 40 एग्जैक्टली मिलेगी लाइन और 180 मिलेगी. ये है राइट. 200 और 50, 200 और 50 वाली लाइन, 200 वाली लाइन. देन यू ड्रॉ फ्री हैंड. ऑलराइट, यहां से शुरू कर दो. यहां से शुरू हुआ. This is OG of less than. सही है? अच्छा. Now दो काम हमने कर दिए. पहले converting frequency distribution into cumulative frequency distribution of less than. दूसरा draw the graph. तो OG भी draw हो गया. अब तीसरा काम बाकी है find the median. उसके लिए क्या करते हैं चिल्ड्रन? तो लेट्स सी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 50 है ना. सो n इक्वल टू 50 एंड दैट इज even. सो मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n बाय 2 प्लस 1 नहीं आएगा, ऑड होता. n बाय 2 दैट इज 50 बाय 2 एंड दैट इज 25th ऑब्जर्वेशन. अरे वाह, 25th ऑब्जर्वेशन यही है ना. ये 25th ऑब्जर्वेशन है ना. तो y इक्वल टू 25 यहां इंटरसेक्ट होगा. वहां से x एक्सिस पे ले लो, x एक्सिस पे ले लो 120 और 1 which will be around 138.5. so this is your median. आपकी समझ में आ रहा है? आपके ग्राफ पेपर में आपको एग्जैक्ट मिलेगा 138.5. भाई 140 ની નજીક છે ને, that is around 138.5. इसका मीडियन 138.5 है. तो आपको ग्राफ से ही मिल गया. So understood how to find median from ogive. So here we are with one more sum.
from exercise 14.4. It is question number 3. Are you ready? Yes, sir. Let's see. The following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a Village. Of course, it should be a village from Punjab state, right? Where wheat is grown in plenty. Change the distribution to a more than type distribution and draw heirs. All right. More than type or equal to. उन्होंने इक्वल टू नहीं लिखा है लेकिन मोर देन टाइप और इक्वल टू। चलिए, अब उन्होंने सिर्फ मोर देन टाइप बोला है तो कौन सा लोअर लिमिट लेंगे? लोअर लिमिट लेना होगा आपको। क्या लेना होगा? ये जो दो फील्ड है ना उसमें 50 नहीं होगा, होना चाहिए, हो भी सकता है लेकिन मोर देन और इक्वल टू नहीं बोला है। तो एक भी इक्वल टू नहीं आता है। ये जो फ्रीक्वेंसी में कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसका बोलो प्रोडक्शन यील्ड 60 हुआ हो, राइट? यील्ड टन्स में इसमें कुछ दिया नहीं। एनीवेज, चलिए, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन। सो प्रोडक्शन यील्ड और नंबर ऑफ फार्म्स। बोलो मोर देन 50, then more than 55. more than 60. more than 65. more than 70. more than 75. more than 80 तो कोई होगा ही नहीं। Are you getting me? Yes, sir. और लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। more than 50 सबके सब है ना, more than 50 सबके सब 100 में से 2 माइनस करो, 98 में से 8 माइनस करो, उसमें से 12 माइनस करो, 78 उसमें से 24 माइनस करो, 54 उसमें से 38 माइनस करो, 16 और उसमें से 16 माइनस करो, हो गया? ऑलराइट, नाउ लेट्स सी। क्विकली वी विल ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ मोर देन 9। क्या लोगे यहाँ? No limit. लोअर लिमिट लेना है, लोअर limit. Okay, this is origin. This is x-axis. This one is y-axis. हो गया? अब लोअर लिमिट 50 से शुरू होता है, यहाँ भी किक लगाना पड़ेगा। ओके, 5 चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मली 10 तक होता ही है। I'll be starting with 50. So 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90। यहाँ इंक लगाना पड़ेगा ऐसे। अब हाईएस्ट क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए मुझे 100। सो 10 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120। Scale, yes, very good. Scale, x axis 1 सेंटीमीटर ही दिया है, 1 सेंटीमीटर। y axis वो भी 1 सेंटीमीटर है। x एक्सिस पे लोअर लिमिट है और जो लिमिट है वो यील्ड है। सो हाउ मच? 5 ना, सॉरी, या 5 टन्स या मैट्रिक टन वो नहीं दिया है, तो 5 यूनिट्स लिखेंगे। चलिए, हाँ, सॉरी 5 यूनिट्स। नाउ y एक्सिस पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ फार्म्स है, नंबर ऑफ फार्म्स है। या ये हेक्टर बोला गया है ना, हेक्टर। बोलो 10 farms. So this is area of yield बताया गया, not quantity of yield. ये देखना थर्ड में थोड़ा ऐसा switch off the fans. यहाँ करके आते हैं पूरे रात।
चलो पहला 50 to 100, so ये 50 और 100 सीधा यहाँ दिस पॉइंट नीचे जाना है, 110 ले लिया, उसको देख के मुझे भी नींद आती है। 55 to 98, ये 55 वाली लाइन 98 उसके थोड़ा नीचे रहेगा, 60 90 60 और 90 थोड़ा नीचे, राइट। 65 78 ये 70 और 80 के बीच, 80 के जस्ट नीचे, 70 54 ये 70 वाली लाइन और 54 बहुत ही नीचे, 75 16 भी बहुत ही नीचे, यहां से अब फ्री हैंड ड्रॉ किए, this is your OG of more than, ओके। सो हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, मीडियन ड्रॉ करना है। सो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी इवन है, सो 100/2, सो दैट इज 50th ऑब्जर्वेशन। अरे वाह, 50th ऑब्जर्वेशन यहाँ है, ये मिलेगा आपको y = 50, यहाँ कहीं पे इंटरसेक्ट हुआ है ना, ये वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सो इट्स अराउंड 71.3, दैट इज मीडियन, 71.3 मीडियन एट अ फास्ट, 71.3 फास्ट। इज दैट क्लियर? ये 71.3 मैंने अदर ही लिख दिया, बट वी नो इट्स ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 75, सो मैंने इसे आपके ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट स्केल के साथ मिलेगा, so you get that value. Sometimes it is difficult even in the graph paper to get that value of the foot of perpendicular drawn from here. Will be difficult. Anyways, so that's all that we have in this session. Next session would be the last session, final session of this chapter, and we'll be solving some textual exercise questions. All right. So see you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day. Stay safe.